about interior angle of a polygon and exterior angles of a triangle of lesson 4 angles and pairs of angles of class 7. First you discuss about interior angles of polygon. First understand what is meant by polygon. Polygon means this polygon poly means number and gon means side. Poly means number and gon means side. Polygons means number of side. This is a closed figure. This is a closed figure. पॉलीगॉन का मतलब है, पॉली का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स एंड गॉन का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है नंबर्स और गॉन का मतलब होता है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स फिगर. अब हमको पहले देखना है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन. हमें पता है कि हमने ट्रायंगल पढ़ा, ये ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 sides. 3 sides make triangle. Now I give the name of this triangle is A, B and C. This portion is called interior portions. Now this angle inside the triangle, so this is called interior angle. Similarly B is interior and C is interior. We say that angle ABC interior angle, BCA interior angle, CAB interior angle. In the triangle there are 3 interior angles. Okay, triangle means 3 side closed figure. Okay, now how it is going to made it? These are the 3 sides. These are the 3 sides. We make this one here. This is a one and another one is going to join like this one. We get a triangle. Now we get this one is triangle. In this triangle there are 3 sides, 3 vertices and these 3 angles. So first to understand what is the sum of this interior angle. What is the sum of this interior angle? Okay, तो हमको ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की सम कितना होता है ये निकालना है. हम क्या करें कि आप लोग डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ कर दो और डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेजर्स देयर एंगल्स. यानी यू मेजर द एंगल ए, देन measure the angle B, then measure the angle C. और जो भी सम आएगा उस सभी सम का टोटल करो. तो हमने जो भी डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद उसके इंटीरियर एंगल का मेजर का सम किया तो वो हमको 180 ही मिलता है. इसमें दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. The sum of the measures of interior angles of a triangle is 180. Okay, this one is said to be a property of triangle. What is the property? The sum of the measure of all angles in a triangle is 180 degree. This is the property of triangle. We say this one is the property of triangle.
मैंने आपको क्या बोला है कि अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा आप लोग, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेजर ईच एंगल एंड उनकी सम करो। तो उनकी सम करने के बाद हमको ये मिलेगा कि सभी ही ट्रायंगल की जितने आपने ड्रॉ किया उस सभी ट्रायंगल की सम जो है वो 180 डिग्री ही आता है। ओके, सो आई टेक वन मोर, प्रूव इट। नाउ यू सी दैट दिस वन इज अ ट्रायंगल। आई ड्रॉ दिस वन इज अ दिस इज अ ट्रायंगल। अभी हमको ये ट्रायंगल मिला, दिस वन इज अ ट्रायंगल। ओके, दिस इज वन एंगल, दिस इज अनदर एंगल एंड दिस इज अ एंगल। You learn that linear pair, there is a straight line form a straight angle, and straight angle, the measure of the straight angle is 180. You know that in previous we learned about this one. The measures of the straight angle is 180, or the straight angle is a type of angle. तो स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 होता है, ये लीनियर पेयर में भी देखा है। और स्ट्रेट एंगल एंगल का एक प्रकार है, टाइप है। मैं यहाँ से हमको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि इसमें जो भी एंगल्स हैं इन सभी एंगल का मेजर लीनियर पेयर होगा। अगर मैं ये तीनों एंगल को ज्वाइन कर दूँ तो एक स्ट्रेट लाइन तैयार होंगी, यानी स्ट्रेट लाइन तैयार होता है, यानी इसका मतलब है कि उसके सभी तीनों एंगल की सम ये 180 है। नाउ सी, आई ड्रॉ, आई फोल्ड दिस वन, दिस इज वन एंगल, आई फोल्ड लाइक दिस वन। ओके, अनदर दिस एंगल आई फोल्ड लाइक दिस वन, meet at this point. Then another one is also going to fold like this one. This is going to fold like this one. अब फोल्ड करने के बाद हम इसको मेजर करें तो यू गेट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलता है, यू सी लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल की सम ये 180 होता है। द मेजर ऑफ द all three angles in a triangle is 180 degree, and so we prove that. Now come on this polynomials. What is meant by polynomials? अब ये थ्री साइड क्लोज फिगर है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स है ये भी, लेकिन इसको हम स्पेशल नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हमने ट्रायंगल बोला है। और एक साइड बढ़ा देंगे हम लोग इसको, और एक साइड बढ़ा दिए जस्ट हियर, तो I draw this one, one more side is there, and there is a formation of quadrilateral, 1 2 3 4 sides। अब 4 sides बढ़ा दिए, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब हमको ये रिलेशन दिखना है कि अब 4 sides है, तो there is a quadrilateral is formed. This is called polygon. No, this is a polygon. This polygon with 4 sides, but you give the name, this is a quadrilateral. इसको हमने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल तैयार होंगे, पहले हम ये फाइंड आउट करें। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने ट्रायंगल तैयार होते हैं। जितने ट्रायंगल तैयार होंगे उसी को हम 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यू गेट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल। ये सभी ही इंटीरियर एंगल का हमें मेजर मिलेगा। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल होते हैं ये यदि हम फाइंड आउट किए, या कोई भी पॉलीगॉन में उसके हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गोइंग टू फॉर्म इन एनी पॉलीगॉन, वी गेट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल एंड दैट इज मल्टीप्लाइड
द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 180। तो एक ट्राइंगल का 180 है, तो जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होगा तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सभी ही इंटीरियर एंगल की सम मिलेगी। ओके, अब ये ट्राइंगल्स है। वन मोर थिंग्स इज देयर कि अब ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड 1 2 3 एंड 4। अब मैंने यहाँ से एक ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ करने के कारण हमको एक ट्राइंगल मिला और दूसरा एक ट्राइंगल मिला, यानी यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल तैयार मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल तैयार हुआ है। तो 2 ट्राइंगल तैयार होने के कारण अब ये जो है ये अपोजिट्स वर्टेक्स ज्वाइन करने के कारण ये जो हम मिलता है इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल्स। और एक ट्राइंगल में 2 डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए और ऐसा एक ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वी कैन ड्रॉ 2 डायगोनल्स इन एवरी ट्राइंगल। हर एक ट्राइंगल में 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग को ट्राइंगल देखना है, करके एक ही डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जो भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो एक ही पॉइंट में करेंगे, तभी हमको नंबर्स ऑफ ट्राइंगल मिलते हैं। तो हमने ये ड्रॉ किया तो हमको मिले 2 ट्राइंगल। ओके, तो एक ट्राइंगल का मेजर कितना है 180, और यहाँ 2 ट्राइंगल है तो 180 इंटू 2 देयर इज वी गेट द हाउ मेनी 360 डिग्री। Means we say that sum of the measures of all angles in a quadrilateral is 180 360 degree. 180 into 2 that is equal to 360 degree. तो ये भी पॉलीगॉन्स है, तो इसको हमने क्या बोला है quadrilateral. This is called quadrilateral. Okay, then I take here there are different polygon. This is a polygon with 3 sides, say triangle. This is a polygon with 4 sides, say quadrilateral. And if you draw here more, just here I take how many numbers of sides are there depend upon this one. If there is a 5 sides, number of sides equal to 5, तो से पेंटागन, इसको हम बोलेंगे पेंटागन। फिर अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 है, समझो मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइड्स 6 है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन यानी how many number of sides are there, according to that you give the name. तो हम 5 साइड क्लोज फिगर रहा तो पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड क्लोज फिगर रहा तो हेक्सागन बोलते हैं, 5 साइड क्लोज फिगर रहा तो उसको पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स बोलेंगे। 6 साइड क्लोज फिगर रहा तो पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स बोलेंगे। 7 साइड क्लोज फिगर रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीगॉन विथ 7 साइड, that is called a heptagon. Then 8 साइड क्लोज फिगर रहा तो पॉलीगॉन विथ 8 साइड, उसको हम स्पेशल नाम दे बोलते हैं ऑक्टागन। पॉलीगॉन 9 साइड क्लोज फिगर होगा तो उसको हम बोलेंगे निनोगन, पॉलीगॉन्स विथ 9 साइड्स। 10 साइड क्लोज फिगर होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 10 साइड और डेकागन। अगर नंबर ऑफ साइड 11 है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 11 साइड, उसको कोई स्पेशल नेम नहीं है, उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 11 साइड। अगर 12 साइड क्लोज फिगर है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स, उसको भी हम स्पेशल नेम देते हैं डूडेकागन। अब 13 साइड क्लोज फिगर रहा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 13 साइड। 14 साइड क्लोज फिगर रहा तो पॉलीगॉन विथ 14 साइड। 15 साइड क्लोज फिगर रहा तो उसको बोलेंगे पॉलीगॉन विथ 15 साइड्स। यानी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ साइड्स जितना होगा उतना उस पर लिखेंगे। अगर n साइड्स है, समझो नंबर ऑफ साइड n है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, तो हम इसको बोलेंगे
पॉलीगॉन विथ n साइड, पॉलीगॉन विथ n साइड्स, है ना। जितना नंबर ऑफ साइड्स होगा उसका वो पॉलीगॉन के साथ हम लगा देंगे, तो यू गिव द नेम ऑफ दैट पॉलीगॉन ऑफ फिगर। सिर्फ 3 साइड क्लोज फिगर है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड हुआ तो क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड रहा तो पेंटागन, 6 साइड रहा तो हेक्सागन, 7 साइड रहा तो हेप्टागन, 8 साइड रहा तो ऑक्टागन, 9 साइड रहा तो निनोगन, 10 साइड रहा तो डेकागन और 12 साइड रहा तो 2 डेकागन। इनको अब थोड़ा सा अलग नाम से हम उसको लेबल करते हैं, लेकिन जो भी 11 साइड रहा तो उसको हम लोग पॉलीगॉन विथ 11 साइड ही बोलेंगे, 15 साइड रहा तो पॉलीगॉन विथ 15 साइड ही बोलेंगे, n साइड रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन विथ n साइड्स। ओके, अब 3 साइड्स था तो ट्रायंगल तैयार हुआ, 4 साइड्स था तो उसका 2 ट्रायंगल तैयार हुआ, अगर 5 साइड्स रहा तो कितने ट्रायंगल्स तैयार होंगे। ओके, तो सी है। अब ये क्या है, 5 साइड्स यानी पेंटागन, एक साइड है, दूसरी साइड, ओके, तीसरी साइड, चौथी और 5 साइड, एंड देयर आर 5 साइड्स, तो इसे पेंटागन और 5 साइड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। उसका अलग ही नाम भी दिया है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन विथ 5 साइड, इसको हम नाम देते हैं पेंटागन। अब इसमें कितने ट्रायंगल तैयार होंगे, ओके, क्वाड्रिलैटरल में 2 ट्रायंगल तैयार होते हैं, पेंटागन में कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो हम इसको देखते हैं कि पेंटागन में कितने ट्रायंगल तैयार होता है। तो ये मैंने एक लिया, दिस इज अ 1 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल तैयार हुआ, फिर से मैंने दूसरा लिया, अब यहाँ से जहाँ से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से उसको ज्वाइन करना है, ये हुआ दूसरा। और है क्या, नहीं है, दिस इज 1 ट्रायंगल, दिस इज अनदर ट्रायंगल एंड दिस इज थर्ड ट्रायंगल। मीन इन पेंटागन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 ट्रायंगल। ओके, पेंटागन में कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स। पेंटागन में साइड्स कितना है, 5, ट्रायंगल कितने तैयार हो रहे हैं, 2, क्वाड्रिलैटरल में साइड कितना है, 4, ट्रायंगल कितने तैयार हो रहे हैं, 2। अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ साइड्स क्वाड्रिलैटरल में 4 है, ट्रायंगल 2 तैयार हो रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, 2 का। पेंटागन में कितने साइड्स है, 5 साइड्स है, ट्रायंगल कितने तैयार हो रहे हैं, 3, एंड डिफरेंस कितने का है, 2 का। और एक हम लेते हैं दिस वन मोर ट्रायंगल पॉलीगॉन, अब ये लिया मैंने, अब इसमें साइड्स कितना है, यू सी देयर इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, here is 6 sides, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स है, यानी कौन सा फिगर हुआ, पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स। इसका स्पेशल नाम क्या है, हेक्सागन। ओके, तो इसमें ट्रायंगल कितने तैयार होते हैं ये देखेंगे हम लोग, फिर से हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं इसमें। ओके, ए लिया, एक यहाँ से ज्वाइन कर दिया और यहाँ, दिस इज 1 ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल मिला, फिर से दूसरा लिया, यहाँ से वहाँ से जहाँ से हमने लिया था यहाँ ज्वाइन कर दिया और ये एक और ट्रायंगल तैयार हो गया। ओके, फिर से हम जस्ट हियर लाइक है, यानी 1 और 2 और ये लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पे, और अब हमको कितने ट्रायंगल मिलता है, 1 2 3 और 4, यानी 6 साइड्स हैं, तो कितने ट्रायंगल मिला, 1 2 3 4। ओके, यानी वी गेट अ 4 ट्रायंगल इन अ हेक्सागन।
गॉन। यानी यहाँ हम लोगों ने अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जस्ट हियर यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया यहाँ पे, तो 2 ट्रायंगल मिला। कितने ट्रायंगल मिला? 2, 1, 2। हाउ मेनी? वन थिंग हियर, number of sides denoted by n। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो n से दर्शाते हैं, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना है? n कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स यानी n कितना है? 4। ओके, ट्रायंगल कितने तैयार हुए? नंबर ऑफ ट्रायंगल 2। 4 नंबर ऑफ साइड्स है, 2 ट्रायंगल्स तैयार हुए। अब मैंने पेंटागन ड्रॉ किया। आई ड्रॉ पेंटागन जस्ट हियर लाइक दिस वन। आई ड्रॉ, दिस इज द 3 side, 4 and 5। ओके, अब ट्रायंगल कितना हुआ? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 5। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना तैयार हुआ है? 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने तैयार हुआ है? 3। और मैंने लिया और एक ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, जस्ट 6 साइड्स, जैसे दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। एंड नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 6। अब ट्रायंगल कितने तैयार हो रहे हैं? यहाँ से हम करते हैं, दिस इज 1, this is 2 and this is 3। 1, 2, 3, 4। अरे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना तैयार हुआ है? नंबर ऑफ ट्रायंगल 4। अब हर एक इसमें हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड 4 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 हो रहे हैं, 2 का डिफरेंस। नंबर ऑफ साइड 5 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 हो रहे, 2 का डिफरेंस। ओके, नंबर ऑफ साइड 6 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 है, फिर से 2 का डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू n minus 2। This is the formula to find out the number of triangles of any polygon। Number of triangles equal to n minus 2। अरे अभी नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो ट्रायंगल कितना होगा तैयार? 10 minus 2 इक्वल टू 8। यानी 10 साइड पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स यानी डेकागॉन है, 10 साइड्स है, उसमें से 2 माइनस कर दो तो यू गेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल 8। अब 12 साइड्स है, उसमें से 2 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 10। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू n minus 2। नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू n minus 2। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल मिला कि हमको उस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हियर सी टू फाइंड द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ अब मैं फाइंड आउट द सम of the measures of interior angle
interior angles, sum of the measures of interior angles equal to the sum of the measures of interior angles. अब हम लोग पॉलीगॉन लिख सकते, जो भी होगा, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल हो तो क्वाड्रिलैटरल लिखो, पेंटागन हो तो पेंटागन, हेक्सागन हो तो हेक्सागन, जो भी होगा वो तो हम यहाँ पे लिख सकते द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और यू मे बी से दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर राइट लाइक दिस वन, पॉलीगॉन, that's equal to 180 degree into n minus 2. What is n minus 2? Number of triangles. n means numbers of sides. n का मतलब है number of sides, और उसमें से 2 माइनस किए तो आपको क्या मिलता है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, अब सपोज मान लीजिए कि नंबर ऑफ n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 8 है ना, n इक्वल टू कितना, 8 है, तो हम इस फॉर्मूला में रख देंगे क्या, द सम of the measures of interior angles of 8 है, नंबर ऑफ साइड 8 है, तो ये क्या हुआ, पॉलीगॉन विथ 8 साइड, लेकिन उसको नाम है क्या, octagon. So we can say that the sum of the measures of interior angles of octagon equal to, okay, what is the formula, 180, put 180 degree into how many numbers of sides, 8, then minus 2, you get the number of triangle, that is equal to 180 into 8 minus 2, 6. Now how many triangles are going to form in octagon, 6. अब 180 into 6 you get 6 zeros are 0, 6 8s are 48, 8 carry 4, 6 7 are 6 plus 4 10, 1080 degree. This is the sum of the measures of all the angles, all the interior angles of a polygon. Okay, we get here 6 0 the 0, 6 8 the 48, 8 carry 4, 6 1 the 6 plus 4 10, 1080. This is the sum of the measures of octagon. सभी ही octagon का measures उसका 180 होगा. ओके, अगर वो रेगुलर ऑक्टागन होता है तो हर एक रेगुलर पॉलीगॉन हो तो हर एक एंगल का मेजर सेम होता है, तो आपको देखना नहीं है. आपको क्या करना है कि पेज नंबर 31 पे टेबल दिया है ऊपर में, वो टेबल सॉल्व करना है, सॉल्व टेबल. दिस इज द होमवर्क, ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे आपको याद करना है दिस वन, दिस इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n minus 2. n मीन्स नंबर ऑफ साइड, n सिंस n एन ए नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब क्या समझेंगे, नंबर ऑफ साइड्स. तो इस तरह का हम इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं. ओके, तो दिस वे वी कैन ड्रॉ, we understand interior angles of a polygon. Polygon means poly means numbers, gon means sides. Polygon means numbers of sides.
पॉलीगॉन जितना साइड्स होगा उसको हम लोग उसका नाम यानी पॉलीगॉन्स विद 11 साइड है तो पॉलीगॉन विद 11 साइड्स बोलते हैं. ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, heptagon, octagon, nonagon, decagon, two decagon. These are the some names, special names of the polygonal figure. Okay. Now we see the exterior angles of a triangle. What is meant by exterior angle of a triangle? This one is a triangle. This is a triangle. Okay, this is interior angle, this is interior angle, and this is interior angle. On extending sides, मैंने इस sides को extend कर दिया. On extending side, extend कर दिया, sides extend किया, है ना, बढ़ा दिया. अब side extend करने के बाद मुझे एक angle मिला. I get this angle. Okay. This angle and its interior angle, उसके बाजू वाला interior angle, this angle and this angle form linear pairs of angle. An angle on extending a sides of a triangle, we get angle. That angle form linear pairs with its interior angle. Then the angle is said to be exterior angle. तब हम इसको बोलेंगे exterior angle. Understand important parts. exterior angle. exterior angle का मतलब क्या है कि मैं साइड बढ़ा देने के बाद जो एंगल मिलेगा वो एंगल उसी के नज़दीक का उसके इंटीरियर एंगल के साथ यदि लीनियर पेयर तैयार कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. अगर लीनियर पेयर तैयार नहीं करता होगा तो वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है. अब वो लीनियर पेयर क्यों मस्ट बी. अब मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूँ, अब मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो आई गेट दिस एंगल. Okay, now these angles and this angle again form linear pairs. फिर से ये और ये दोनों क्या कर रहा है, लीनियर पेयर तैयार कर रहा है. वो लीनियर पेयर तैयार कर रहा है करके इसको भी हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. इसको भी हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे. ओके. तो मस्ट बी दैट जो on extending the sides of triangle we get an angle. That angle must be forms linear pairs with interior angle. Then that angle is said to be exterior angle. हम साइड एक्सटेंड करने के बाद हमको जो एंगल बाहर का मिलेगा ट्रायंगल के बाहर का वो एंगल और उस ट्रायंगल में का एंगल यदि लीनियर पेयर तैयार कर रहा है तो हम उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे. तो ए एक्सटेंड करने के बाद ए इसके साथ लीनियर पेयर तैयार कर रहा है. मैं इसको नाम दे दूँ ए. ओके. बी, दिस इज पॉइंट सी, आई डी, दिस इज डी एंड दिस वन ई. तो एंगल ए सी डी, दिस वन एंगल ए सी डी एंड angle ACB, angle ACB, दोनों एंगल form linear pair, form linear pairs of angle, linear pair of angle. वो क्या तैयार कर रहा है, लीनियर पेयर तैयार कर रहा है. Therefore we say that angle ACD is an exterior angle करके इसको हम बोलेंगे exterior angle. Okay. Similarly, angle BCE
BCE and this side, and एंगल ACB, वही एंगल ACB और A एंगल क्या तैयार करे? फॉर्म लीनियर पेयर, फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या तैयार कर रहा है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर तैयार कर रहे हैं करके देयरफॉर वी से दैट एंगल BCE इज एन एक्सटीरियर एंगल करके इसको भी हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, मैंने ये दो साइड एक्सटेंड करने के बाद सिर्फ ये दो ही एंगल मिले क्या? नहीं, और भी एक एंगल मिला है, वो ये है दिस साइड, और भी एक एंगल मिला है। कौन सा एंगल मिला है? ये वाला। दिस एंगल इज गोइंग, यू गेट इट, एंड दिस एंगल, ये भी एंगल मिला है, वो भी ट्रायंगल के बाहर ही है। वो भी कैसा है? ट्रायंगल के बाहर है। तो ट्रायंगल के बाहर है तो वो भी एक्सटीरियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल के बाहर है, ये भी ट्रायंगल के बाहर है, ये भी ट्रायंगल के बाहर है, तो ये भी एक्सटीरियर होना चाहिए। लेकिन नहीं, दिस एंगल इज नॉट एक्सटीरियर एंगल टू एंगल ACB। ACB का वो एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एक्सटीरियर एंगल किसको बोला है? On extending the sides of a triangle, we get angle. That angle form linear pairs with interior angle. Then the angles is said to be exterior angle. आपको समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल का साइड एक्सटेंड करने के बाद जो हमें एंगल मिलता है, वो एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर तैयार करता हो तो दैट एंगल इज अ एक्सटीरियर एंगल। अब ये एंगल जो है, ये वाला, ये इसके साथ ही लीनियर पेयर तैयार नहीं करता। दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म लीनियर पेयर। वो लीनियर पेयर तैयार नहीं करता करके दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल। So we say that this is not exterior angle. क्यों नहीं है ये exterior angle? Not exterior angle. ये exterior angle नहीं है। क्यों नहीं है? Because they do not form linear pairs. Okay, so we say that angle BCE and angle ACB, angle BCE and angle ACB do not form linear pair, do not form linear pair of angles, do not form linear pairs of angle. वो linear pair तैयार नहीं करता। Therefore we see that angle DCE is not exterior angle. Why this is not exterior angle? Because this angle do not form linear pair. वो लीनियर पेयर तैयार नहीं करता करके वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है। इट्स ओके। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे और जाते हैं कि एक वर्टेक्स के बाद दो इंटीरियर एंगल मिले, तो ऐसे ट्रायंगल में हमको 6 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। और ये जो नॉट एक्सटेंड, तो वो जो एक्सटीरियर एंगल तैयार नहीं होता है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। वो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। वो जो इंटीरियर एंगल है उसका वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा।
It's okay. So you see that this is a triangle. We extend these sides. This is the interior angle. So this is called the exterior angle. इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल्स और ये इंटीरियर एंगल ये दोनों तैयार क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर से. तो उनकी सम कितना होगा 180 डिग्री. उनकी सम कितना होगा 180 डिग्री. लेकिन एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बोलता है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द exterior angle is equal to the sum of the measures of its remote interior angle. रिमोट का मतलब है दूर के. रिमोट का मतलब है दूर के. अब देखिए सी है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एस. ए एक्सटीरियर एंगल. दिस इज अ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल. रिमोट का मतलब है दूर के. ये आपको बोले ये उसका सक्का भाई है और ये दूर के भाई ये चचेरे. ऐसे समझ लो इनको. ये सक्का भाई हुए, ये चचेरे भाई हो गए. ठीक है, इसके दूर के. तो मेजर्स ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल यानी मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. यानी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर plus measures of angle R P Q. This R P Q and this is P Q R. इन दोनों की सम इतना होता है. This is the properties of exterior angle. This is the property of exterior angle. Okay. दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल. अब यहाँ से हमको सभी की मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वो आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 21 में करोगे. सबकी मेजर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. अब ये मैंने तो बोला कि एक्सटीरियर एंगल इसकी मेजर इन दो एंगल की सम इतना होता है. ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा कि दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, ये ट्रायंगल हुआ है, ये ट्रायंगल हो गया. अब इसका मतलब यह है कि ये एक्सटीरियर एंगल से और ये रिमोट है नहीं, ए और ए एंगल ए और एंगल बी. तो मैंने लिखा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी. इतना होता है. सही होता है क्या? तो हम लोग देखते हैं थोड़ा. ओके, मैंने अभी ए लिया. हाँ, ए इसको मैंने यहाँ लगा दिया. ये लगा. यू सी फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड. ए और ए जो है ये सभी ए और ए वाला ए एक है और ए है. ये यहाँ के पीसेस. ठीक है, अब ये दोनों सेम है. अंडरस्टैंड, दिस आर इक्वल. अब मैंने इसको यहाँ जो है when I take here like this one, just I keep this one. This is a एंगल. ये एंगल हुआ. ओके, इसका पीस मैं कट करके
इसका फिक्स, यानी ये जो लगा है वो मैंने यहाँ लगा। ओके, अब मैं वहाँ का पीस कट करता, यहाँ का, और यहाँ लगा दिया। ओके, तो वहाँ का पीस कट करके मैं यहाँ लगा दिया इस। So we see that this one and these are equal, and the measure of the exterior angle is equal to sum of the measures of this remote interior angle. ये remote interior angle होता है, दूर के इंटीरियर एंगल। ओके, हाँ, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट, I take your practice set differently. Okay.